ઓકે ઓકે, રેકોર્ડિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. હા, તો તમારા જેટલા બી ડ્રીમ્સનું એક લિસ્ટ બનાવ્યા પછી તમારે તમારા ડ્રીમને ક્વોન્ટિફાય કરવા માટે આ 3 અલગ અલગ સવાલ પોતાને પૂછવા જોવે કે એવા કયા ડ્રીમ્સ છે જેને હું ડિલે કરી શકું છું, આઈ કેનોટ ડિલે, આઈ કેનોટ ડિલીટ. એવા કયા ડ્રીમ્સ છે જે ડિલે થઈ શકે છે પણ ડિલીટ નથી થઈ શકતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે મોબાઈલ લેવો છે એ હું થોડું ડિલે કરી શકું પણ ડિલીટ ન કરી શકું. યુ કેન ડિલે એન્ડ યુ કેન ડિલીટ. તો હવે આના એક્ઝામ્પલમાં હું એમ કહી શકું કે મારે આઈફોન લેવો છે, મારે મર્સિડીઝ કાર લેવી છે, તો એને હું ડિલે પણ કરી શકું, એને હું ડિલીટ પણ કરી શકું, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સિચ્યુએશન ટુ સિચ્યુએશન. તો મારા જેટલા બી ડ્રીમ્સ છે મારે આ ત્રણેય અલગ અલગ પોઈન્ટથી મારે ક્વોન્ટિફાય કરવાની જરૂર છે. વન્સ આઈ ક્વોન્ટિફાય ઓલ માય ડ્રીમ્સ, એના પછી આ એક પ્રશ્ન આવે છે કે આપણે ઇન્ડિયન લોકો જેટલા બી પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ એ આ મેજર 5 એરિયામાં કરીએ છીએ: પ્રોટેક્શન, સેફટી, ગ્રોથ, ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ એસેટ. પણ આમાં પ્રોબ્લેમ શું જોવામાં આવ્યો છે છેલ્લા 18 વર્ષથી મેં શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે લોકોને જે વસ્તુ ગમે છે અથવા જે વસ્તુ ફાવે છે એના તરફ પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઢળ્યું હોય છે. પ્રોટેક્શનની અંદર બધા પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સ આવે છે. જો મને ઇન્સ્યોરન્સ સમજાય છે ને ઇન્સ્યોરન્સ ફાવે છે તો હું મારું મેક્સિમમ પોર્ટફોલિયોમાં મેક્સિમમ ઇન્સ્યોરન્સ હશે. અગર જો મને શેર બજાર સમજાય છે અથવા મને ગોલ્ડ સમજાય છે અથવા મને પ્રોપર્ટી સમજાય છે તો હું મારું મેક્સિમમ પોર્ટફોલિયોમાં મારે આ એરિયામાં મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે હશે. પણ એકચ્યુઅલી આ 5 એરિયાનું એક પ્રોપરલી એસેટ એલોકેશન થવું બહુ જરૂરી છે. તો એક લિસ્ટ બનાવી લીધું ડ્રીમ્સનું, પછી ક્વોન્ટિફાય કરી લીધું, અને ક્વોન્ટિફાય કર્યા પછી મારે કયા એરિયામાં કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું એ એક આખું પ્રોગ્રામિંગ કરવાની જરૂર છે. હવે નેક્સ્ટ જે સ્લાઇડ છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે લોકો મોબાઈલથી યુઝ કરી રહ્યા છે એ લોકો ઝૂમ કરીને પોતાના એજ ગ્રુપને જોઈ શકે છે. એજ ઓફ એનર્જી, એજ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એજ ઓફ લાયબિલિટી, એજ ઓફ સ્ટેબિલિટી. તો તમે જે એજ ગ્રુપમાં છો તો તમારા જે 5 ક્વોડ્રન્ટ છે, 5 જે વિભાગ છે, પ્રોટેક્શન, સેફટી, ગ્રોથ, ઓપોર્ચ્યુનિટી, એસેટ, તો કયા તમારા એજ ગ્રુપની અંદર કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારું કયા એરિયામાં જવું જોઈએ ત્યાં એ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. હવે પ્રોટેક્શનમાં 25 to 35માં પણ 5% છે, 45 to 55માં પણ 5% છે. એનો અર્થ તમને સમજાવું. જ્યારે હું 25 થી 35 ના એજ ગ્રુપમાં છું ત્યાં કદાચ મારી ઇન્કમ ઓછી છે. યસ સર. એક જ મિનિટ, તમે છે ને આઈધર ઇંગ્લિશ, હિન્દી આ બેમાં વધારે બોલ્યો, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ આર નોટ ગુજરાતી. ગુજરાતી પણ છે ને ગુજરાતી નથી પણ, તો પીપલને समझा एवी तो तने हिंदी में अपन बोलते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया, मुझे शुरुआत में हिंदी से बात करना था. एनीवेज, तो आपने जो भी ड्रीम बनाया है, आपने जो भी 3 डिपार्टमेंट में उनको क्वांटिफाई कर दिया, उसके बाद एक एनालिसिस है कि हम इंडियन लोग ये 5 एरिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हमारे एज ग्रुप के साथ बदली होते रहता है. अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैं 25 से 35 के बीच में हूं तो मेरा फैमिली साइज क्या है, मेरा इनकम लेवल क्या है, उस हिसाब से मेरा प्रोटेक्शन का 5% होगा. जैसे जैसे मेरा फैमिली साइज बढ़ता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, मेरा इनकम लेवल बढ़ेगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो वो 5% पहले जैसे जैसे मेरा एज बढ़ेगा वो 5% का रेशियो भी बदलते जाएगा. तो हर एक एज के हिसाब से मुझे मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग को देखना है और ये 5 क्वाड्रेंट के हिसाब से जैसे जैसे ये प्रेजेंटेशन में हम आगे जाते जाएंगे ये 5 क्वाड्रेंट को हम डिटेल में समझते जाएंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड इज कैसे होता है फाइनेंशियल प्लानिंग. तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं. सबसे पहले सिक्योरिटी प्लानिंग की प्लानिंग आता है. जैसे ये 5 क्वाड्रेंट में सबसे पहला क्वाड्रेंट था प्रोटेक्शन. तो सिक्योरिटी प्लानिंग में क्या क्या आता है, तो हर एक प्रकार के इंश्योरेंस. सो व्हाट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का डिक्शनरी मीनिंग ये होता है एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस, टेम्पररी या परमानेंट, उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जो स्कीम और जो प्लान में लेता हूं उसको कहते हैं इंश्योरेंस. अभी ये टेम्पररी और परमानेंट लॉस क्या हो सकते हैं, आइदर माय डेथ और एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ व्हीकल और प्रॉपर्टी. तो ये सारी चीजों का जो इंश्योरेंसेस आते हैं वो सिक्योरिटी प्लानिंग में आते हैं. उसको प्रोटेक्ट करना सबसे अहम है, सबसे जरूरी है, क्योंकि उससे मेरा इनकम डिस्टर्ब हो सकता है, उससे मेरा फैमिली डिस्टर्ब हो सकता है.
उससे मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखो तो वो मैंने डार्क अक्षरों में लिखा है एडिक्वेट। उसका मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन कितना, तो वो इनफ होना चाहिए। वो इनफ कितना होना चाहिए वो आगे हम देखते हैं ये प्रेजेंटेशन में। तो सिक्योरिटी प्लानिंग सबसे अहम है। उसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, व्हीकल या प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड अक्सर आमतौर पे हम इग्नोर कर जाते हैं, या हमें उसके फंडामेंटल रूल्स पता नहीं है। अभी ये जो कोविड-19 का जो फेज आया है हमारी लाइफ में, हम कोई नहीं इच्छते थे कि ऐसा फेज आए, और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसा फेज किसी के लाइफ में कभी नहीं आए। तो इमरजेंसी फंड, जिन जिन लोगों के पास अभी लिक्विडिटी के फंड पड़े थे, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है। तो ऐसा इमरजेंसी फंड, यानी मेरा मंथली इनकम जो भी है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 और 5, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फैमिली। तो 5 महीने का सैलरी उसको मुझे इमरजेंसी फंड में क्रिएट करना चाहिए। वो मुझे एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जब भी मुझे चाहे मैं इसको लिक्विडेट कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्लानिंग। उसके बाद आता है वेल्थ प्लानिंग, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको किसी ना किसी प्रकार का गोल्ड बेस्ड प्लानिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो गोल्ड बेस्ड प्लानिंग नहीं है तो दिक्कत आ सकती है कि ये पैसे मैंने रखे थे किसी और चीज के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और अच्छी कार की स्कीम आई, मैंने कार ले लिया। रखे थे किसी और चीज के लिए, मैंने यूज कर दिया किसी और के लिए। ऐसा प्लानिंग अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ऐसे आपने आपका डिसिप्लिन ऐसा रहा तो प्रोटेक्शन के बाद जो सेफ्टी है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी के जो क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हुए आपको आपके गोल बेस्ड प्लानिंग को उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अगर मेरा गोल नजदीक है तो मुझे सेफ्टी के क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। अगर मेरा मिड टर्म का है तो मुझे ग्रोथ की क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। अगर मेरा गोल लॉन्ग टर्म का है तो मुझे ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन करके आगे जाना चाहिए। तो गोल बेस्ड प्लानिंग में मेरा ड्रीम होम हो सकता है, कोई ड्रीम व्हीकल हो सकता है, ट्रैवल फंड हो सकता है कि इतने सालों के बाद मुझे कहीं मेरे फैमिली को या घूमने यहाँ जाना है, तो ये सारी चीजों के लिए प्लानिंग हो सकता है। टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग भी एक ऐसा एरिया है जो आमतौर पे खास करके छोटे बिजनेसमैन जो है, एमएसएमई, उनका टैक्स सेविंग के ऊपर पकड़ बहुत कम होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि आप लीगली प्लानिंग करके आप लीगली कुछ पैसे टैक्स सेविंग कर सकते हो। अगर आपने पैसे बचाए तो वो आपने पैसे कमाए, ऐसा कहा जाता है। तो अगर जो पैसे बच गए वो आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कहीं ना कहीं से ग्रोथ हो सकता है। तो ये जैसे मैंने इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी एक डिफरेंस बता दूं, उसका डिक्शनरी डेफिनेशन क्या कहता है। सेविंग का मतलब ये है कि जो भी मेरी मंथली आय है, जो भी मैंने कमाया है और जो भी मैंने खर्च कर दिया, तो कमाई माइनस खर्च, उसकी उपरांत जो बच गया, दैट इज कॉल्ड सेविंग। यानी वो सेविंग है, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उसको मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है, आपको फ्यूचर की नीड को फुलफिल करना है, तो सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जब आप एक इन्वेस्टमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, जिसमें आप कुछ एफर्ट लेते हो। चाहे आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपने एफर्ट लेके इन्वेस्टमेंट किया, आपने ऑनलाइन किसी से बात की, कोई एजेंट से बात की, कोई एडवाइजर से बात की, इस तरीके का अगर आप एफर्ट लेते हो तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आमतौर पे हम पैसे सेव करते हैं, लेकिन सेव किए हुए पैसे से हमारी फ्यूचर की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। ये कैसे, वो आगे हम प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। रिटायरमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल। पूरे भारत में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से हुआ है। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि भारत में लोग आमतौर पे हमारी बेसिक नीड्स के पीछे भागते रहते हैं और रिटायरमेंट का प्लानिंग छूट जाता है। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आइदर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर, और यू कैन टाइप, कि रिटायरमेंट का प्लानिंग का राइट एज क्या है? कौन सी एज से मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना चाहिए? आइदर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर, और यू कैन टाइप एंड आंसर। ऑलमोस्ट 45 50।
ओके, रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू होना चाहिए 45-50। अंकित, अंकित राइट? No, sir. Retirement age 45 to 50. Retirement age, okay. No, my question is, at what age should I start my retirement planning? 25-30. 25-30. Great. Anyone else? Please unmute yourself and you can answer. आप आपको unmute कर सकते हो और आंसर दे सकते हो. Ideally, we can begin it like by our 20s also, Okay. according From to the time you start earning. Right. I don't know the name जिसने ये कहा, क्योंकि अंकित. अंकित, okay, right, अंकित, absolutely right. जब से मेरी पहली तनख्वाह या पहली आमदनी शुरू हुई, तब से मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए. और लाइक 5%, 10%, अगर मेरी इनकम मान लो 5,000 है, 25,000 है, 50,000 है, जो भी मेरी पहली तनख्वाह है, चाहे वो 20 साल की एज में हो, चाहे 12 साल की एज में हो, चाहे 22 साल या चाहे 25 साल, whenever I start my income, तो वहां से मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए. बिकॉज के कभी ना कभी रिटायरमेंट आना ही आना है. तो वो डू नॉट डिलीट, कैन नॉट डिलीट और कैन नॉट डिले वाले क्वाड्रेंट में आता है. उसका प्लानिंग जैसे मेरी इनकम शुरू हुई तब से हो जाना चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी हैव अ इनफ कॉर्पस. ओके, सो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया है. ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस. अगेन मैं प्रोटेक्शन के ऊपर आता हूं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को लेके बहुत मैंने ऐसे मार्क किया है कि बहुत लोगों को कुछ मिथ होते हैं. तो कुछ डिटेल में बात करना चाहूंगा. तो लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेशन होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे. इमोशनली देखने जाओ तो लाइफ को ऐसे कोई इवेल्युएट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे लिए, मेरी और मेरे परिवार के लिए मेरी लाइफ की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि हम लोग नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते. लेकिन किसी भी इमोशनल वैल्यू को जब मुझे नंबर में लेके आना है, तो मुझे कहीं ना कोई ये कैलकुलेशन में लेके आना होगा. तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज अ कैलकुलेटर, बहुत लोगों को पता भी होगा. उस हिसाब से हमारा इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए. तो व्हाट इज दैट कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट? सो 15 टाइम्स ऑफ माय एनुअल इनकम. फॉर एग्जांपल मैं सालाना 10 लाख इनकम कमाता हूं, तो 15 टाइम्स कितना हुआ? अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ, 1.5 करोड़. वेरी गुड, वेरी गुड, 1.5 करोड़. और मेरी टोटल लाइबिलिटीज, मेरा हाउसिंग लोन, मेरा बिजनेस लोन, मेरा पर्सनल लोन, मेरा व्हीकल लोन, मैंने किसी से कुछ भी प्रकार का उधार लिया है, और आउटस्टैंडिंग बिल्स, मुझे मेरे बिजनेस के हिसाब से किसी को पैसे देने हैं, तो वो जितना भी मेरा लाइबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल में अगर मेरा लाइबिलिटी 50 लाख है, सारी प्रकार की लोन्स को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा इनकम का 15 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 1.5 करोड़ हुआ. मेरा टोटल लाइबिलिटी अगर 50 लाख है, तो मेरी टोटल मिनिमम इंश्योरेंस मेरा होना चाहिए 2 करोड़ का. इन दिस एग्जांपल माय मिनिमम इंश्योरेंस शुड बी 2 करोड़. उसका रीजन ये है कि अगर मुझे कुछ इमीडिएट हो जाता है और मेरे जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो पे ऑफ करने के बाद मेरे फैमिली के लिए कितना बचेगा, तो आने वाले कुछ साल उसको उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा. सो दिस इज द कैलकुलेशन. ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका इंश्योरेंस होना चाहिए. और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ऐसा प्लान है, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, तो उसको कहते हैं टर्म प्लान. मैं ट्रेडिशनल प्लान पर्सनली आई डू नॉट सेल, आई डू नॉट रेकमेंड. तो आई हाईली रेकमेंड टर्म प्लान. अगर मैं एक एज लेता हूँ 35 से 40 की एज की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो सालाना मंथली अगर मैं इन्वेस्टमेंट पकड़ूंगा तो शायद 2,500 से 3,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट होगा. एंड आई विल गेट 1 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस मुझे मिल सकता है. तो जिसमें मेरी जितनी भी एनुअल इनकम है उसके हिसाब से जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का जो कैलकुलेशन आता है, आई कैन प्रोटेक्ट माई फैमिली प्रॉपरली. तो दिस इज द कैलकुलेशन. आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर आप एक जगह पे नोट करते रहना. तो एंड में जब क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो वहां पर वी विल टेक योर क्वेश्चंस. उसके बाद में एक ऐसा क्वेश्चन है कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस. तो यहाँ पर अभी आपके सामने एक टेबल आएगा, उस टेबल में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. तो नंबर्स को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऐसा अपने आप को सवाल करिएगा, थोड़ा एनालिसिस करिएगा, और उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं कि आपको लगता है कि आप फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए
प्रिपेयर्ड हैं। आज का एवरेज हॉस्पिटल अगर मैं एडमिट होता हूँ आज के दिन पे, तो मेरा बेड चार्जेस और मिनिमम जो नर्सिंग चार्जेस और सारे चार्जेस मिला के अगर पर डे की एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एवरेज 5000 आएगा। और आई एम श्योर कि यू ऑल विल अग्री कि 5000 एक दिन का चार्जेस आना बहुत स्वाभाविक है। मैं छोटी हॉस्पिटल और बहुत बड़ी हॉस्पिटल की अगर एवरेज करूँ तो आई थिंक पर डे का कॉस्ट मेरा 5000 आएगा। आज के दिन में इफ आई एम अगर मेरा एज अगर 35 साल है, अगर आज के डेट में अगर पर डे एक्सपेंसेस 5000 है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट आफ्टर 20 इयर्स। ये मैंने डेटा लिया है जेन्युइन हेल्थ केयर की साइड से, और इसका इन्फ्लेशन रेट मैंने कैलकुलेट किया है कि हेल्थ एक्सपेंसेस सालाना 14 से 15% बढ़ते हैं। तो आज जिसकी कॉस्ट 100 रुपया है, नेक्स्ट ईयर उसकी कॉस्ट 115 रुपया होगी। तो ये कैलकुलेशन के साथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो कॉस्ट आज 5000 है, तो 20 साल के बाद 1,15,000 हो जाएगी। तो ये सवाल मुझे अपने आप को पूछना है, क्या मैं फ्यूचर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर हूँ। और इसमें बहुत सारे और भी मैंने ट्रीटमेंट के नाम लिखे हैं, डेंगू, कैटरेक्ट, एंजियोप्लास्टी। आपके आपके फैमिली में कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा कुछ एक्सपेंसेस हुआ होगा तो आपको पता होगा कि आज की कॉस्टिंग रेट्स क्या हैं। अगर आपने रेगुलर हॉस्पिटल में किया होगा और कोई संस्था के हॉस्पिटल में नहीं किया होगा तो कॉस्टिंग क्या होगी, तो आप 20 साल के बाद का कॉस्टिंग देख सकते हैं। सो इट इज अ वेकअप कॉल टू आस्क अवर सेल्फ, एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट। ये एक स्लाइड है, उसके बाद एक ये कैलकुलेशन, एक ये भी मेरे को एक जेन्युइन साइट से मैंने डेटा लिया हुआ है कि आफ्टर एवरी 1 मिनट इन इंडियन रोड्स, ऑन इंडियन रोड्स, ये डेटा निकल के आता है कि एवरी 1 मिनट के बाद एक एक्सीडेंटल एक रोड एक्सीडेंट होता है, और आफ्टर एवरी 3 मिनट देर इज वन डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। ये दोनों स्लाइड में शायद आपको ऐसा लगेगा कि आई एम ट्राइंग टू सेल फियर, बट फ्रेंड्स आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल फियर टू यू, बट दिस इज द फैक्ट, ये रियलिटी है। ये मैंने साइट से, प्रॉपर साइट से डेटा लिया हुआ है, तो ये रियल फिगर्स नंबर्स हैं। तो आपको डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ठीक से प्रिपेयर हूँ। और प्रोटेक्शन के क्वाड्रेंट में अगर मुझे कुछ होता है तो क्या मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस ठीक से प्रोटेक्टेड है या नहीं। सो ये दो साइड के बाद एक आता है वेल्थ क्रिएशन। तो वेल्थ क्रिएशन करने के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो कुछ सिस्टम मैंने मेरे हिसाब से देखी है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे जब जरूरत हो तब मुझे पैसा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं बात करूं तो बैंक की सेविंग अकाउंट्स कैन बी ए लिक्विड, म्यूचुअल फंड में कुछ लिक्विड इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लान्स होते हैं। तो ऐसे प्रकार के सारे इन्वेस्टमेंट है लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे वेल्थ क्रिएशन जो भी करना है वो इन सारी चीजों को लेके सोचना चाहिए। फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं, जैसे बैंक एफडीज हो गए, बैंक आरडीज हो गए, पोस्टल के बहुत सारे सर्विसेज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के कुछ प्लान्स होते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, जो वेरिएबल है, रिटर्न मार्केट के आधार पे है, उसको बहुत समझ के, सोच समझ के उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में एक एरिया है इक्विटी, शेयर बाजार। मैं शेयर बाजार के लिए अक्सर ये कहता हूँ क्योंकि शेयर बाजार की जब नाम आता है तब आमतौर पे लोगों का मानना ऐसा होता है कि ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है। तो शेयर बाजार को लेके बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मैं शेयर बाजार को इस तरीके से देखता हूँ कि द बिगेस्ट रिस्क इन इक्विटी इज बीइंग अवे फ्रॉम इक्विटी। अगर आप शेयर बाजार से बहुत दूर हैं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। क्योंकि मेरा एज एडवाइजर बहुत फेथ है कि चाहे ये गवर्नमेंट रहे, चाहे वो गवर्नमेंट रहे, चाहे किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस देश में, दुनिया में आए, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको अपना बिजनेस ग्रो करना ही करना है। तो वो बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो 20-25 सालों से हमारे सामने ग्रो हो रही हैं। तो मैं कुछ पैसा उन कंपनियों को दूं क्योंकि वो कंपनियां बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। तो मैं कुछ पैसा अपना उन कंपनियों को दे सकता हूं, मैं ट्रस्ट उन पे कर सकता हूं।
तो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में तो अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है क्योंकि मार्केट बहुत गिरी थी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और गोल्ड, ये दो एसेट क्लास जो है ना, उसको मैं पर्सनली उसको इमोशनल एसेट क्लास कहूंगा। क्यों कहूंगा, जैसे हमारे क्वाड्रेंट में आपने देखा तो असेट भी एक इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। आपकी एज के हिसाब से आपका असेट क्रिएट होना चाहिए, लेकिन कितना। पोर्टफोलियो में मैंने कई ऐसे क्लाइंट को देखा है, कई ऐसे पोर्टफोलियोज देखे हैं कि जिसमें 70% एसेट रियल एस्टेट या कमर्शियल एस्टेट का उसमें रहता है और उनके पास लिक्विड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैश को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। आज की तारीख में बहुत ऐसे लोग थे जिनके सारे पैसे कुछ ऐसे एसेट क्लास में पड़े थे कि उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई। तो जब मैं चाहूंगा तब मैं प्रॉपर्टी बेच नहीं पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू लिक्विडेट दैट एसेट वेरी इमीडिएटली। तो प्रॉपर्टी और गोल्ड को बहुत सोच समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और गोल्ड का मेरा पर्सनली ऐसा मैंने देखा हुआ है कि गोल्ड इज एक्सट्रीमली इमोशनल एसेट। जब मौका भी आता है, अभी बहुत गोल्ड ऊपर भी गया है, बट हम बेच के उसको प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग ने इमोशन से जुड़े हुए एसेट क्रिएट किए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी और गोल्ड को बहुत सोच समझ के प्लान करना चाहिए। कितना करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस छोड़ के किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। तो इतने बहुत सारे तरीके हैं वेल्थ क्रिएट करने के। लेकिन एक आम आदमी को अपने किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से कितना इंटरेस्ट मिनिमम मिलना चाहिए, आप कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? This is a question for everyone. You can unmute yourself or you can type. Can you repeat? What is the minimum interest we should expect in terms of wealth creation? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Around 10 to 15%. Okay, around 10 to 15%. No, Okay, anyone else? 8 to 10%. 8 to 10%. 8 to 10%. Okay. Okay. So 12 to 15%. 12 to 15%. Okay. ओके, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला स्क्रीन पे रखा हुआ है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो आमतौर पे हमारे नजरों से इग्नोर हो जाता है, जिसको ध्यान में लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो भी अगर इसको मैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी कह सकता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं उसका जीडीपी परसेंटेज क्या है और उसका इन्फ्लेशन का रेट क्या है, इन दोनों का टोटल जो होता है ना, वो मिनिमम वी शुड गेट। तो अगर मैं मेरे देश की बात करूं तो अगर मैं जीडीपी को, एवरेज जीडीपी अगर हो सकता है कि नेशनल लेवल का कुछ और हो, लेकिन जो शहर में हम रहते हैं तो उसका ये फॉर्मूला शायद हो सकता है। तो 5% इज जीडीपी, 7% इज एवरेज इन्फ्लेशन। एवरेज इन्फ्लेशन में इसलिए कहता हूं क्योंकि गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन रेट देती है वो उनके कुछ अलग नॉर्म्स है कि वो 4.5 से लेके 6.5% का इन्फ्लेशन रेट बताते हैं। लेकिन अगर मैं एजुकेशन, हेल्थ एक्सपेंसेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जिस तरीके से महंगी हो रही हैं, तो उसका अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को एवरेज करूं तो दैट कम्स अराउंड 7%। तो मेरा जो कैलकुलेशन है, यू मे डिफर टू दिस, बट अकॉर्डिंग टू दिस माय कैलकुलेशन, 5% of GDP, 7% of inflation. So my total expected return in any of my wealth creation asset class should be 12. इतना मिनिमम मुझे मिलना चाहिए मैं जो भी प्लान करता हूँ। तो अगर मेरे इन्वेस्टमेंट में अगर मैंने किसी भी चीज का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लिया है टू क्रिएट वेल्थ, अगर उसमें 12% मुझे सालाना नहीं मिलते हैं, तो आई नीड टू इवेल्युएट, I need to restructure my portfolio. This is my suggestion is. यहाँ तक आप, are you all with me till now? Yes. Okay, okay, okay.
हमने शुरुआत में समझा कि हमें ड्रीम्स का लिस्ट बनाना है, उस ड्रीम्स को क्वांटिफाई करना है, कांट डिले, कांट डिलीट और ऐसे 3 अलग अलग बॉक्सेस में। उसके बाद में हमने समझा कि प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और एसेट, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में हमारा एसेट एलोकेशन होना जरूरी है। इसका डिटेल हम आगे डेफिनेटली समझेंगे। फिर हमने इंश्योरेंस का कैलकुलेशन समझा, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कुछ हम लोग ने शॉकिंग डेटास देखे। और उसके बाद अब मैं बात करूंगा कुछ मंत्रा की। ये मंत्रा आप नोट डाउन करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप चाहे तो लिख लीजिए। ये मंत्रा मैंने कुछ सालों में समझे हैं। मैं जिस सीनियर के साथ मैं काम करता हूँ, जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैं काम करता हूँ, तो ये मंत्रास इवॉल्व होते रहते हैं। तो आई रियली वांट टू शेयर ऑल दिस मंत्रास टू एवरीवन। तो ये मंत्रा क्या है? डोंट अर्न टू स्पेंड। तो जनरली ये होता है कि योर एक्सपेंसेस विल डिसाइड हाउ मच यू कैन सेव और हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट। तो आज मैंने ऐसा भी देखा है कि क्रेडिट कार्ड और लोन्स जितनी आसानी से अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमारा स्पेंडिंग कल्चर डेवलप हो रहा है। बट इन्वेस्टमेंट कल्चर और अर्निंग कल्चर के विरोध में अगर मैं मेरे स्पेंडिंग कल्चर को कंपेयर करूं, तो आज का बहुत बड़ा एक एज ग्रुप ऐसा है, दे नो हाउ टू स्पेंड मनी, बट they are literally struggling to invest money and save money, and how to evaluate and the balance between investment and expenditure. So do not earn to spend. आप जो भी पैसा कमाते हो, बहुत सारे फॉर्मूला आगे आने वाले हैं कि उसका एग्जैक्ट आपको प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो डू नॉट अर्न टू स्पेंड। तो आप जो भी पैसा कमाते हो, सिर्फ स्पेंडिंग पर्सपेक्टिव से आप मत कमाइए। देयर आर मच मोर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा है, दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो डू नॉट अर्न टू स्पेंड, उसका कोरिलेटेड पॉइंट है, आप जो भी कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपया कमाया और उसमें से मैं 30 से 35 रुपया मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में रख देना चाहिए, अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए। कुछ जाएगा प्रोटेक्शन में, कुछ जाएगा सेफ्टी में, कुछ ग्रोथ में, कुछ अपॉर्चुनिटी में, कुछ एसेट में, डिपेंडिंग ऑन माय एज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैरी। तो कुछ इनकम के माइनस मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा पैसा बचता है, तो उसके बाद मुझे मेरे हर प्रकार के कंजम्पशन को देखना चाहिए। ये एक फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्रैक्टिस करें तो इट विल हेल्प यू लॉट। वर्क विथ प्रोफेशनल एडवाइजर। ऐसा लगेगा कि बिकॉज आई एम एडवाइजर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट आप में से बहुत लोग जो प्रोफेशनल एडवाइजर के साथ ऑलरेडी काम करते होंगे, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। ऑनलाइन भी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल एडवाइजर के साथ काम करते हैं, तो होता क्या है, आपका जो भी प्लानिंग है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका कमाया हुआ जो पैसा है, आपका रियल एस्टेट जो गोल्ड है, उसके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट जुड़े हुए जितने भी एरियाज है ना, उसको इवेल्युएट करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर कोई बाहर का आदमी है जो प्रोफेशनल है, जिसको सारे एसेट क्लास के बारे में और सारे फाइनेंसिस के सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में जिनको पता है, तो वो अगर आपका एनालिसिस करता है, तो आपके ड्रीम्स और पैसों के ऊपर उस व्यक्ति का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको फैक्ट बता पाएगा, यानी आपको आपका आईना बता सकता है। तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ें और ऐसी संस्था या ऐसी कोई कंपनी के साथ जुड़ें जो प्रोफेशनल है और जो मार्केट में अपडेटेड है। तो उनसे जुड़ने से, उनके साथ काम करने से आई एम श्योर आपको बहुत बहुत फायदा होगा और आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ नई नई चीजें जानने मिलेंगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ दिक्कत है, कुछ कमियां हैं, तो वो आपको पता चलेगा। प्लानिंग कम्स फर्स्ट देन द प्रोडक्ट। दिस इज माय फेवरेट मंत्रा। में इसके ऊपर स्पेसिफिकली 30 मिनट्स का सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर जिस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, जिस तरीके से प्लान बेचे जाते हैं ना, आज से 5-7 साल पहले ना इंश्योरेंस एजेंट, इनका एक बहुत बड़ा माहौल चलता था। आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में कोई भी खुशी का न्यूज आया, बेटा या बेटी बॉर्न होती है,
तो ये प्लान ले लो, ये पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी इसके लिए ले लो, ये। लेकिन होता क्या है ना कि इन सारी पॉलिसीज के लेते वक्त हम प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। आइदर हमें पता नहीं है कि प्लानिंग किस तरीके की से किया जाना चाहिए, और हमारे नजदीकी दोस्त, फैमिली मेंबर्स, बिकॉज दे आर इनटू दैट बिजनेस, तो वो पॉलिसी बेचने के लिए या पॉलिसी खरीदने के लिए हमें बहुत इंसिस्ट करते हैं, एंड व्हेन एंड वी इमोशनली बाय आल्सो। सो दैट इज आल्सो वन, कि आपका प्लानिंग कम्स फर्स्ट देन द प्रोडक्ट। आपका फोकस प्लानिंग पे ज्यादा होना चाहिए। वेल चेकअप इज मस्ट। वेल चेकअप मैं कहता हूँ रिव्यू को। वेल चेकअप यानी आप जो भी पूरे साल में प्लान करते हो, किसी भी क्वाड्रेंट में आपने पैसा लगाया, इफ यू बाय इंश्योरेंस, इफ यू बाय रियल एस्टेट और व्हाट एवर यू डू इट, आपका टैक्स प्लानिंग, आपका लोन्स, सारी चीजों का रिव्यू आपको साल में कम से कम एक बार आपके एडवाइजर के साथ बैठ के अपडेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स चेंज होते हैं, बहुत सारे गोल्स चेंज हो जाते हैं। आज मैंने जो गोल का एक लिस्ट बनाया है, वो एक दो साल के बाद हो सकता है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे। मेरी रिक्वायरमेंट पीछे हो गई, या मेरी रिक्वायरमेंट जल्दी आने वाली है, या कोई ऐसी इमरजेंसीज आ गई, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, तो मेरा रिव्यू लेना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, मैं उसको इन्वेस्टमेंट टीचर की एक बालकनी में मैं उसको भीष्म पिता मानता हूँ। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, तो आपको लोन्स और टैक्स, उसको समझना बहुत अनिवार्य है, और उसको गहराई से समझना बहुत अनिवार्य है। जो भी फॉर्च्यून 500 और जो भी बहुत बड़े बनते हैं, वो उनका फोकस लोन्स और टैक्सेशन पे रहता है। तो आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको आप लोन्स को ध्यान में रखते, आपका बैंकिंग को ध्यान में रखते, आपके टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए भी आपको आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू कम से कम सालाना एक बार करते रहना चाहिए। Most important, don't follow. You should not invest because someone made lots of profit, and do not stop investing because someone made loss. Follow your financial goals. ये मैं अक्सर मेरे सेमिनार में और मेरे क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप दो रियल ब्रदर हैं, आपकी दोनों की नीड अलग हो सकती है। दो फ्रेंड्स हैं, सेम एज, सेम फैमिली साइज, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अलग हो सकती है। यानी मेरे फैमिली में अगर किसी ने किसी प्रकार की एसेट ली है, कोई बंगलो खरीदा या कोई गोल्ड खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे भी वही प्रकार का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो आपकी नीड, आपकी लायबिलिटी और इन सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद करना चाहिए। आपको किसी के भी पोर्टफोलियो को फॉलो नहीं करना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट मंत्रास। इन्वेस्ट इनटू फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्ट इनटू योरसेल्फ। जैसे आज हम लोग ये 29 people are there into this in this workshop. Earlier it was number was 48, but because of all these ups and downs we lose so many people. So sorry to everyone. हमें रेगुलरली फाइनेंशियल लिटरेसी में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार के कोई वेबिनार हो रहे हैं, कोई सेमिनार हो रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया के भी कई बहुत सारे सेमिनार होते हैं, इक्विटी को लेके, रियल एस्टेट को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके। तो जब जब आपको मौका मिलता है, आपको ऐसे अपने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसे सेमिनार्स में आपको अटेंड करना चाहिए। भारत भर में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि लोग जितना टाइम अपने मोबाइल पे, सिनेमा हॉल में या पिकनिक पे इन्वेस्ट करते हैं, उतना फाइनेंशियल लिटरेसी पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वी आर सेमी लिटरेट और इलिटरेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो हमें रेगुलरली अपने आप को एडुकेट करना चाहिए। एंड मी एज ए एडवाइजर पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट एज अ माय मॉरल ड्यूटी टू एडुकेट माय क्लाइंट्स। तो मैं रेगुलर अलग अलग विषय पे सेमिनार लेता हूँ, उनसे बातचीत करते रहता हूँ, जैसे मेरा नॉलेज कुछ विषय पे अपग्रेड होता है। एंड सेम वे मैं मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को भी वो प्रोवाइड करता हूँ। डू नॉट बॉदर अबाउट मार्केट, बी अवेयर।
इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ मार्केट विच इज फ्लक्चुएटेड, तो उस मार्केट के से डरिए मत, बट उसके उसके लिए आप बी अवेयर, यानी आप उसका कैलकुलेशन कीजिए, उसको समझ लीजिए। खास करके मैं अगर इक्विटी मार्केट की बात करूं तो उसमें फियर और ग्रीड, यानी डर और लालच, ये दो विषय के हिसाब से, ये दो एलिमेंट, ये दो सेंटीमेंट है जिसके हिसाब से पूरा इक्विटी मार्केट रन करता है। तो अगर आप और ये होता कैसे है, किसी भी प्रकार का इवेंट हुआ, तो कोविड-19 मान लो ये एक एग्जांपल है, एक इवेंट हुआ, और वो इवेंट की वजह से होता ये है कि आइदर हम डर जाते हैं या हम लालच आ जाता है। तो ये डर और लालच की वजह से हम मार्केट से बाहर निकल जाते हैं या हम बहुत सारे पैसे लगा देते हैं। लेकिन इवेंट की जगह पे अगर वो इवेंट का मार्केट पे असर क्या होने वाला है, तो डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय इवेंट, बट वो समझिए कि उसका असर क्या होने वाला है। जो भी इवेंट हुआ उसका आने वाले समय पे उस मार्केट पे असर क्या होने वाला है। ये कोविड-19 हुआ तो उसका कौन से एरिया में ज्यादा असर होगा, ताकि मैं वहां पर इन्वेस्ट करूं, वहां का मैं वो मार्केट को समझूं और वहां मैं मेरे पैसे को डिप्लॉय करूं, ताकि आई कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द इवेंट, एक्चुअली वी शुड फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट। सो दैट इज व्हाट दैट्स व्हाई आई से डू नॉट बॉदर अबाउट मार्केट अप डाउन होती रहती है, एंड ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, होगा। लेकिन अगर आपने ढंग से प्लान किया है, आपके फाइनेंशियल गोल्स को लेके, हर एक क्वाड्रेंट को मेंटेन करके, एसेट क्लास को मेंटेन करते हुए अगर आपने प्लान किया है, तो आपको अवेयर होने की जरूरत डेफिनेटली है, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉक मनी एट होम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा टॉपिक है। जब मैं बच्चों के साथ या कोई फैमिली को, या स्पेसिफिकली जब मैं फीमेल की कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, तब मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि टॉक मनी एट होम। मैंने ये माना है, समझा है, और मैं अक्सर क्लाइंट के घर पे जाता हूँ, तो लोग पैसों के बारे में बातचीत करते हैं घर में, लेकिन कौन सी बात करते हैं, किस प्रकार की बात करते हैं। अगर कोई पैसों के लेके तनाव है, कोई टेंशन है, तो ऐसी सारी बातें करते हैं। लेकिन हमें जब पता नहीं होगा कि मेरी नीड क्या है, मेरी वाइफ की नीड क्या है, मेरे बच्चों की नीड क्या है, तो आने वाले जो भी समय का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये सब बिखर सकता है। अगर हम सारे फैमिली मेंबर अगर एक पेज पे नहीं है पैसे की अंडरस्टैंडिंग को लेके, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा, घर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कल्चर शुरू करना है, बजट कल्चर अगर शुरू करना है, तो आपको आपके फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं एक सेमिनार में गया था, पेरेंटिंग के सेमिनार में, तब वो पेरेंटिंग में जब फाइनेंस का कुछ टॉपिक आया, तो बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैंने सवाल पूछा कि व्हाट इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस मनी टू द किड्स। तो बहुत अच्छा आंसर मिला वो फैसिलिटेटर से। उन्होंने कहा कि राइट एज वो है जब बच्चा पहली बार मुझे कहता है कि पापा मुझे ये लेके दो, मम्मी मुझे ये लेके दो, चाहे वो टॉय हो, टॉफी हो, कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो। जब पहली बार, अगर हो सकता है 2 साल की एज में, 3 साल की एज में, उनके पास वो वोकेबुलरी नहीं रहेगा, उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी शायद नहीं रहेगा, बट शायद ऐसा भी होगा कि उनको समझ में आएगा। स्टार्ट टॉकिंग टू देम। तो घर में पैसों की बात कीजिए, पैसों के प्रॉब्लम के बारे में बात मत कीजिए, पैसों को बजट के मामले में आप बात कीजिए, नीड के बारे में बात कीजिए। घर पे पैसों की बात करना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक कल्चरली मैंने देखा हुआ है कि जो फाइनेंस के जो डिसीजन है ना, वो हमारे कल्चर में ऐसा है कि वो मेल मेंबर वो डिसीजन लेता है, फीमेल आर नॉट इन्वॉल्व इन दोज डिसीजंस। तो कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि एशियन कंट्रीज में फीमेल्स आर गुड मनी सेवर, मेरा ऐसा मानना है। बहुत लोगों ने एट द टाइम ऑफ जब नोटबंदी हुई थी, तब बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के पैसे अलग अलग जगह से निकले, घर के अलग अलग कोनों से निकले थे। तो फीमेल्स आर रियली गुड इनकम सेवर, लेकिन उनको समय के साथ जो बदलाव होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में या फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, तो इन्वॉल्व देम, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे बहू हो, या वाइफ हो, मदर हो, इन्वॉल्व फीमेल्स ऑल्सो। तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नया डायमेंशन मिलेगा। तो प्लीज टॉक मनी एट होम। Taking loan is an art, learn it. Loan and taxes are key to
बिकम वेल्थियर। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि लोन्स एंड टैक्सेस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपके लोन्स का रिव्यू भी करते रहना आपको जरूरी है। अगर आप रेगुलरली आपके लोन्स की रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में कोई नए प्रकार के लोन आए हैं, या मेरा लोन्स अगर हायर रेट पे चल रहा है तो उसको मैं किसे इवेल्यूएट करके फायदा लेके कम रेट में करूं तो मेरा ईएमआई बचेगा, तो वो एक्स्ट्रा पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन अर्न मोर मनी। इन्फ्लेशन और प्लानिंग, व्हाट इज इन योर हैंड। तो जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा राक्षस है और आमतौर पे हमारे नज़र से वो बेखबर रह जाता है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि इन्फ्लेशन का अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो महंगाई। तो महंगाई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्लानिंग हमारे हाथ में है। तो महंगाई को कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे। आज अस्पताल का खर्चा मान लो जो है, 5 साल के बाद जो होगा हमें पे करना पड़ेगा। स्कूल का भी ऐसा ही है। तो स्कूल के सामने हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे शायद, हॉस्पिटल मेडिकल सिस्टम के सामने अगर हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लानिंग करना हमारे हाथ में है। तो वहाँ आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए प्लानिंग में। ओके, सो आफ्टर दिस मंत्रास आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा, एंड आई होप दिस ऑल द मंत्रास आर रियली वर्थ फॉर यू। तो कुछ डूज एंड डोंट्स में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनने के टाइम करने के टाइम पे देयर आर कपल ऑफ डूज एंड डोंट्स आई वुड लाइक टू शेयर हियर। तो वी शुड नॉट कॉपी पोर्टफोलियो फ्रॉम समवन। वही जो मैंने मंत्रा में कहा कि आप कॉपी मत कीजिए किसी और का पोर्टफोलियो, किसी और की इन्वेस्टमेंट को कॉपी मत कीजिए। वी शुड नॉट कॉपी पोर्टफोलियो फ्रॉम समवन। अगर कोई दोस्त अगर एक जगह पे प्रॉपर्टी लेता है तो ग्रुप में प्रॉपर्टी लेना कई बार किफायती होता है, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ले रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं, इसलिए मैं लूं। So do not fall into that emotional trap. Okay. And second point, we should always remember our financial goals. तो financial goals को आप बनाए रखिए, उसको पकड़ के रखिए। अगर वो चेंजेस भी होते हैं ना, तो जब आप रिव्यू मीटिंग करते हो आपके एडवाइजर के साथ, वो चेंज हुए हुए फाइनेंशियल गोल्स को भी आप वो रिव्यू मीटिंग में डिस्क्लोज कीजिए। गिव लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू टैक्सेस, आई ऑलरेडी मेंशन। खास करके जो छोटे बिजनेस वाले हैं, एमएसएमई, वो टैक्सेस को नजरअंदाज करते हैं। आईटीआर क्यों फाइल करना है, आईटीआर के फायदे फाइल करने से क्या होगा। हम हमारा मैक्सिमम एनर्जी डाल देते हैं हमारे सर्विसेज में, और दुकान खोला, दुकान बंद कर दिया। लेकिन अगर हम टैक्सेस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर अगर इतना ही एफर्ट डालेंगे तो वो सारे जो मेहनत हम कर रहे हैं वो वर्थ होगी। अदरवाइज कुछ सालों के बाद जब हमारा अर्निंग एज खत्म होगा तब हमें ये दिक्कत समझ में आएगी कि यार, और जब हमें लोन्स लेनी होंगी तब ध्यान में आएगा कि यार आईटीआर हमने ठीक से फाइल नहीं किया था। तो एंड रिमेंबर द 5 क्वाड्रेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग: प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड एसेट। ये 5 क्वाड्रेंट को हमें ध्यान में रखना है। हम जो भी प्लान करते हैं इन 5 क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना चाहिए। डोंट बी हरी इन पेइंग ऑफ लोन्स। ये पॉइंट में बहुत सारे लोग मेरे से शायद डिसएग्री करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हाउसिंग लोन की मैं एग्जांपल लूं तो आज की डेट में मान लो 7.25% पे हाउसिंग लोन मिलती है, लेकिन एवरेज अगर बात करूं तो 8.5 से 9%, 8.5 to 9% इज द एवरेज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो अगर मैं बढ़िया भाषा में बोलूं कि अगर मुझे किसी ने 10 लाख या 25 लाख रुपया मैंने बैंक से लोन लिया है ब्याज पे, तो 8.5% के ब्याज पे मुझे कौन पैसा देगा। तो वो पैसा मुझे जल्दी पे नहीं करना है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाती है मुझे कुछ लोन के बर्डन कम डेफिनेटली करने हैं। ये नहीं कहता हूं कि अगर आप 50 की एज में है तो भी आपको लोन ऊपर रखना है, नो, आई डोंट एडवाइज दैट। बट आपकी 10-15 हजार की या 20 हजार की भी लोन कंटिन्यू रखिए। उसका फायदा क्या होगा कि जब भी आपको मान लो जरूरत पड़ी तो आप वो लोन को टॉप अप लेके आप उसका दूसरा फायदा ले सकते हैं। अगर आपने लोन क्लोज कर दिया तो हो सकता है कि आपकी एज बड़ी हो गई, या अर्निंग एज खत्म हो गई, या आपका अभी इफ यू आर नॉट डूइंग दैट साइज ऑफ बिजनेस जितना अभी आप अभी कर रहे हैं, तो आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो आपके लोन एडवाइजर, आपके टैक्स एडवाइजर आपको इसको ठीक से समझाएंगे। तो प्लीज कनेक्ट विद देम,
और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि अगर जो पैसे आपको लोन में पे करने हैं वो आप इन्वेस्ट कीजिए। एक फॉर्मूला मैं मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ कि अगर मान लो आपका 20 लाख का लोन है और वो 25 साल का है, तो आइदर 2% ऑफ योर एंटायर लोन अमाउंट और 15%, 10 to 15%, डिपेंडिंग ऑन द number of years tenure, 10 to 15% of your EMI should go into that SIP। और जितने साल का आपका लोन है उतने साल आप उस SIP को चलाए रखिए। आपके लोन में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपका कवर हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट करके देखा हुआ है। देयर इज अ फ्री कैलकुलेटर्स अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन डाउनलोड दोज फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स एंड यू कैन डू कैलकुलेशंस। सो कीप चेकिंग ऑन एसेंशियल इंश्योरेंस, आर दोज इनफ। अगर आपके जितने भी इंश्योरेंस है अगर वो इनफ नहीं है तो उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन क्वाड्रेंट, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज भी बढ़ती हैं, तो वो मैंने 5 पॉलिसी लेके रखी है आज से 10 साल पहले। तो डू नॉट रिलाई ऑन दोज पॉलिसीज। समय समय पे आपका इंश्योरेंस को चेक करते रहिए, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ किसी का 3 लाख के बिल आ रहे हैं, किसी के 5 लाख के बिल, किसी के 10, 12, 15 लाख के बिल आ रहे हैं और पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो 2-5 लाख की पॉलिसीज आती हैं होती हैं, तो आपके बहुत सारे सेविंग्स आपको तोड़ने पड़ते हैं, गोल्ड बेचना पड़ता है। मैंने और आपने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे होंगे कि अपनी रियल एस्टेट भी बहुत लोगों को बेचनी पड़ती है अगर अच्छे से प्लान प्रोटेक्शन क्वाड्रेंट में नहीं किया है तो। टेक एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल्स, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पहले अगली स्लाइड में। लॉट्स ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स विल नॉट बी यूजफुल इफ इट इज नॉट लिंक्ड विथ योर फाइनेंशियल नीड्स। तो मेरा अक्सर मैं जब क्लाइंट के पास जाता हूँ, खास करके जो ट्रेडिशनल और 45-50 के ऊपर के जो एज के क्लाइंट रहते हैं, तो वो पुरानी बातें करते हैं कि हम लोग हमारे पास ये 15 पॉलिसीज है, 20 पॉलिसीज है। लेकिन अगर उसको आज के इन्फ्लेशन के बाद में कैलकुलेट करता हूँ और जब मैं उनको नंबर्स बताता हूँ कि आपको जितनी भी आपने पॉलिसीज निकाली हैं उसकी आज की सरेंडर वैल्यू या फ्यूचर की जो वैल्यू है, वो जब आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है वो आपकी आने वाली नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तब वो थोड़े शॉक हो जाते हैं। तो आप बहुत सारी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए लेकिन इंश्योरेंस इनफ होना चाहिए। तो सारी पॉलिसीज को इवेल्युएट करते रहना चाहिए समय समय पे। These are the steps of financial planning. Every individual को ये प्रोसेस अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके नोट कर रहे हैं तो आप स्टेप्स नोट कर लीजिए। मीट द प्रोफेशनल एडवाइजर, क्रिएट द ड्रीम शीट विद हेल्प ऑफ एडवाइजर। आपके चार्ट बनाइए ड्रीम्स का, क्वांटिफाई कीजिए अपने सारे ड्रीम्स को। कांट डिले, कांट डिलीट, जैसे 3 क्वाड्रेंट थे, इन क्वाड्रेंट में आप अपने ड्रीम्स को डिवाइड कीजिए। डेवलप एंड प्रोसेस द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान आपके एडवाइजर के साथ आपने मीटिंग किया, आपने पूरा एनालिसिस का डेटा पहले से आपने एडवाइजर को दे दिया है, उसने पूरे एनालिसिस के साथ वो रिपोर्ट के साथ आपके साथ बैठेंगे, वो एक्सक्लूसिव मीटिंग होगा, एक प्लान डिजाइन होगा और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। फिफ्थ एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं। सो ड्रीम इज इक्वल टू डिजाइन एंड डिसिप्लिन। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। आपका ड्रीम, किसी भी प्रकार का ड्रीम है, अगर उसको अचीव करना है तो एक डिजाइन होना बहुत जरूरी है। अगर ये पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर मैं डिजाइन का नाम दूं तो दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लस आपका डिसिप्लिन। डिजाइन एंड डिसिप्लिन अगर मिल जाएगा तो आपका किसी भी प्रकार का ड्रीम फुलफिल हो सकता है। तो इम्प्लीमेंट द प्लान जो हमने बनाया है और डिसिप्लिन अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और वो प्लान को हर बार रिव्यू करते रहना चाहिए। वो प्लान चेंज हो सकता है लेकिन उसका जो आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया है तो उसको छोड़िए नहीं। एंड टेक रेगुलर रिव्यूज फ्रॉम योर एडवाइजर। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फील्ड है, जिसको एजेंट के तौर पे बहुत लोग मानते थे, व्हेनेवर वी कॉल टू क्लाइंट और व्हेनेवर वी कॉल टू पीपल, तो आज के समय में ऐसा बहुत कम होता है। जब ये डिसीजन मेकर की एज ग्रुप बदली हो गई, आज डिसीजन मेकर यंग है, यंग डिसीजन मेकर वो ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा फोन काट देते हैं
और हम अक्सर कुछ ना कुछ बेचने के लिए आएंगे या पॉलिसी की बात करेंगे, और एक वर्ड है जो लोग हमारे बारे में बताते थे कि बाटली में उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के लिए डेफिनेटली काम करेगा क्योंकि उसके लिए ब्रेड एंड बटर है, लेकिन वो आपके लिए भी प्लान करेगा, आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हर फाइनेंशियल नीड के लिए भी वो पूरा प्लानिंग करता है, वो एनालिसिस करता है। तो अगर आपके एडवाइजर इस तरीके से प्लान करते हैं तो गिव रिस्पेक्ट टू देम, दे विल प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स, वो आपकी बहुत सारी सहायता कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट एरियाज, सो जो भी हमने सुना, देखा, समझा, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज unmute yourself and ask one by one, so I'll try to cater. What are the services that you offer? Yeah, वो एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं डेफिनेटली बताऊंगा व्हाट आर माय सर्विसेज, वो आप डेफिनेटली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड अगर हम बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा, वी कैन गो टुगेदर, वी कैन ग्रो टुगेदर। It's very important to talk and unmute yourself and just ask easily. If we have life policies and term policies, so Yes. what weightage should be given more? Very good question. मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका सवाल अगर यही है तो, कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ ट्रेडिशनल प्लान की पॉलिसीज ली है और कुछ टर्म प्लान लिए हैं, तो दोनों में से किस पॉलिसीज को ज्यादा वेटेज देना चाहिए? इज दैट योर क्वेश्चन? Yes. ओके, तो मैं इसको परसेंटेज में अगर डिवाइड करूं कि अगर मेरा ट्रेडिशनल प्लान है, आप अनम्यूट कर दीजिए, आप अभी सॉरी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके। तो अगर मेरा कोई भी ट्रेडिशनल प्लान है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले कोई भी अगर मेरे ट्रेडिशनल प्लान है, वो जो भी मुझे रिटर्न देंगे अपार्ट फ्रॉम रिटायरमेंट प्लान, वो मुझे 4-4.5% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते हैं। तो जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का रेट है, तो आज मैंने पॉलिसी ली है और मेरे को 20 साल के बाद पैसों की जरूरत है, तो वो मेरी फाइनेंशियल नीड ट्रेडिशनल प्लान फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा बहुत ज्यादा पैसा उन पॉलिसीज में जाता है तो मुझे इवेल्युएट करना चाहिए कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं तो मैं आज की तारीख में 22 से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आई एम पेइंग 28,000 ईयरली एंड आई एम सिक्योर्ड फॉर 2.25 करोड़ के लिए। तो अगर मैं मेरा 28,000 या 22,000 का प्रीमियम अगर मैं ट्रेडिशनल प्लान में डालता हूं तो मुझे 2.5 से 3 लाख या ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो कहाँ मेरा 10 लाख का सिक्योरिटी और कहाँ मेरा 2.25 करोड़ का सिक्योरिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि मेरा बहुत ज्यादा पैसा अगर ऐसे प्लान में जाता है जो मेरी नीड फुलफिल नहीं करने वाला है, तो उन पॉलिसीज को रिव्यू करना, इवेल्युएट करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वैसी पॉलिसीज ज्यादा हैं और अभी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस लेना बनता है, अगर पोर्टफोलियो अलाउ करता है, तो आपको टर्म प्लान ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, ट्रेडिशनल प्लान कम लेना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस। तो गिव लॉट्स ऑफ वेटेज टू टर्म प्लान बिकॉज वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कवर करता है कम पैसों में। रिटर्न नहीं मिलता है लेकिन आपकी बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सिक्योर कर देता है। I think I have answered your question. Yes, thank you. Thank you. Any more questions? આજની તારીખમાં ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું વધારે સારું છે? Oh wow, very classic. आप अभी म्यूट कर दीजिए। ઓકે. वेरी क्लासिक क्वेश्चन। अक्सर ये पूछा जाता है सवाल कि आज के तारीख में कहाँ इन्वेस्ट करना जरूरी है। मुझे मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट या मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जब भी मुझे सवाल पूछते हैं, मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या जवाब देते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेरा एज 42 है और 6 साल के बाद हायर एजुकेशन आने वाला है मेरे बच्चों का,
तो मुझे इस तरीके से प्लान करना चाहिए। अगर उनके एजुकेशन का प्लान मैंने नहीं किया है, अगर मेरी बेटी आज मान लो 12 साल की है और 10 साल 15 साल के बाद उसकी मैरिज के लिए मुझे प्लान करना है या मेरे रिटायरमेंट के प्लान करना है, यानी बेस्ट प्लान नहीं होता है, मेरा बेस्ट गोल क्या है और वो कितना नजदीक या दूर है, तो उस हिसाब से मेरे प्लानिंग चेंज होते रहने चाहिए। आई थिंक आई हैव गिव यू आंसर। Thank you. ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। कोई और सवाल है? One more question. प्लीज प्लीज गो अहेड। It's about in today's time, like last year, many were saying that go for SIPs and mutual funds. ओके, So will you still recommend that? ये अच्छा, इसका सवाल का जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए डेंजरस होगा। अगर आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कहता है और आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है वो मान लो थोड़ा लंबा है, दूर है, 5 साल 7 साल 10 साल के बाद है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जिन्होंने मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने 15 साल पहले सिर्फ 25,000 रुपीज एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे और वो डिविडेंड वाले प्लान में इन्वेस्ट किए थे, तो उनकी आज फंड की वैल्यू 15 साल के बाद आज फंड की वैल्यू सिर्फ 25,000 से 32,000 ही हुई है, लेकिन उनको डिविडेंड मिला है 53,000। सो व्हाट अ ग्रेट सिस्टम कि डिविडेंड मिला है 53%, 53,000 और उसकी फंड की वैल्यू है 32,000। तो इतना मार्केट नीचे जाने के बाद भी, यानी 15 साल का अगर मैं देखता हूँ तो मैंने लॉस नहीं किया है। और कोई भी मार्केट अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से है तो एवरीथिंग इज गुड, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉइजनस अकॉर्डिंग टू मी। तो इम्पोर्टेंट मार्केट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपका गोल शीट है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपकी नीड में ये कहा जाता है कि आप म्यूचुअल फंड के ऐसे प्लान में इन्वेस्ट कीजिए कि आपके गोल्स बहुत नजदीक आने वाले हैं, 2-3 सालों में है, तो आपको आपके म्यूचुअल फंड के प्लान को रिवाइज करना चाहिए। मैंने 10 साल का प्लान किया है, 15 साल का प्लान किया है, लेकिन जैसे जैसे मेरा गोल नजदीक आता है तो मुझे अपने प्लान को रिवाइज करके रिस्क वाले प्लान में से ऐसा ऐसा सेफ्टी और मच सेफ्टी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में मुझे आ जाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इज गुड इंस्ट्रूमेंट। मेरे पास एक एग्जांपल है, 1996 में एक व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड शुरू किया था 500 रुपए से। 2018 में उन्होंने घर लिया, तो घर का टोटल ये जो लमसम अमाउंट था वो म्यूचुअल फंड से दिया और उसमें से जो डिविडेंड आता है हर साल उसमें से उनका ईएमआई प्लान हो जाता है। तो उनको बहुत छोटा अमाउंट है जो हर साल ऐड करना पड़ता है अपने ईएमआई में। तो बहुत सारे तरीके हैं, म्यूचुअल फंड को आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हो एंड इट इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट अगर आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से वो लिया है तो। Can I ask one question? प्लीज गो So, अहेड। for example, अभी जैसे कोविड की सिचुएशन थी, 23 मार्च को मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। एग्जैक्टली। सो अगर किसी ने जैसे SIP स्टार्ट किया है 5,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ का, और अगर ड्यूरिंग कोविड मार्केट क्रैश होता है, तो शुड वी पुट इन द एंटायर ईयर्स मनी ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज NAV अच्छा आएगा उसमें, यूनिट्स ज्यादा अच्छे आएंगे, या ड्यूरिंग सच डिप्स, आई मीन टू से ये डिप्स जिससे आते हैं मार्केट में बड़े करेक्शंस उस टाइम पे? ओके, That अगेन is my first question. The Okay. second question related to this is ओके कि फंड्स की जो रेटिंग है वो काफी बार चेंज होती रहती है। कई बार वो रेटिंग फर्स्ट 5 स्टार रहती है, उसके बाद में 3 स्टार या 1 स्टार हो जाती है, तो उसके हिसाब से SIP मॉडिफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ओके ओके, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। ग्रीड या फियर, ये दो चीजों के बारे में मैंने बताया कि जैसे मार्केट क्रैश हुआ, डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा आपको लेना चाहिए, लेकिन आपको ये कंसीडर सबसे पहले करना चाहिए
कि अगर आपकी नीड, क्योंकि अगर ये कोविड की बात करूं तो बहुत सारे लोगों का फाइनेंस डिस्टर्ब हुआ है, बिजनेस डाउन हुए, कुछ लोगों के सैलरीज अप्स एंड डाउन हुए हैं, बहुत सारे लोगों के सैलरीज नहीं मिले हैं, या बहुत सारे सैलरीज में कटौती हुई है। तो मुझे इमरजेंसी फंड मेरे सर्वाइवल के लिए क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो आने वाले बहुत साल समय में, आने वाले कुछ महीनों में, अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये कोविड का इफेक्ट बहुत लंबा चलेगा शायद, तो अगर वो इफेक्ट लंबा चला तो मेरे फैमिली को क्या असर करेगा, उसको कैलकुलेट और इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास वो इनफ फंड है 1-2 साल चलने, या 6 महीने या 8 महीने, वॉट, अगर आपका सैलरीज कम नहीं हुआ है, वो रेगुलर चालू है, तो 6-8 महीने का इमरजेंसी फंड अगर मेरे पास है, तो मुझे डेफिनेटली उसका डिप हुआ है जैसे मार्केट, तो मुझे फायदा लेना चाहिए। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि एक साथ में बहुत ज्यादा पैसे मत लगाओ, क्योंकि यानी यानी लमसम में एक साथ में बहुत ज्यादा पैसे मत लगाओ, क्योंकि मार्केट और भी बहुत आने वाले समय तक फ्लक्चुएट रहने वाला है। मार्केट का हम अंदाजा किस नजरिए से लगाते हैं कि सेंसेक्स इतना था, आज सेंसेक्स ये है। अगर आप म्यूचुअल फंड की हर एक स्कीम को अगर इवेल्युएट करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो म्यूचुअल फंड की स्कीम कौन सी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं, अगर उसको आप देखते हो, उसके उतार चढ़ाव के ऊपर अगर आपका रेगुलर फोकस है, तो इट्स रियली गुड। तो आपको पैसा लगाना चाहिए, लेकिन आपको छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ये मार्केट नीचे डिप हुई है, अगर ऐसी दूसरी बार भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको पैसे लगाने चाहिए, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। और एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो कोविड सिचुएशन है ना, इट इज नॉट फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस इज अ मेडिकल क्राइसिस। तो मेडिकल क्राइसिस में जब भी किसी भी देश में अगर इसकी वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट के बारे में जब इन्वेंशन हो जाएगा, या हमें पता चल जाएगा कि ऐसी कोई वैक्सीन बन गई है, तब मार्केट ऊपर शूट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास कुछ पैसा वो अपॉर्चुनिटी के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीन नहीं निकली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन जो था उसको अनलॉक किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत मोबिलिटी आई है, थोड़े बहुत बिजनेसेस स्टेबल हुए हैं। लेकिन ऐसे कोई भी बड़े जब क्राइसिस आते हैं ना, तब वो डिप करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर से डिप करते हैं, ऊपर जाते हैं, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल्स वापस ब्रेक करते हैं, अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। तो हर छोटे छोटे पैसे को लगाओ। और जो दूसरा आपका सवाल जो था रेटिंग के बारे में, मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सिंस लास्ट 18 इयर्स, मैं रेटिंग को रेटिंग नहीं देता हूँ। मेरे लिए आपका पोर्टफोलियो, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, उसको 5 स्टार देना चाहिए, क्योंकि रेटिंग कौन सी एजेंसी कौन से बेसिस पे करती है हमें नहीं पता है। कौन सी एजेंसीज के क्या कैलकुलेशंस हैं जिसके हिसाब से वो रेटिंग करते हैं। वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी के हिसाब से रेटिंग करते हैं, वो वैल्यू स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रेटिंग करते हैं, वो उनके पास्ट हिस्ट्री को देख के रेटिंग करते हैं, या फ्यूचर के कुछ आने वाले समय को देख के रेटिंग करते हैं। मीन्स व्हाट आर द ग्राउंड्स। वो रेटिंग कितना ज्यादा मायने है, उससे ज्यादा मायने रखता है आपका पोर्टफोलियो। हाँ, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, तो आप जैसे मार्केट क्रैश हुआ, आप कुछ पैसा लगाओ, और ऐसी जगह पे लगाओ। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम को अगर आप ठीक से पढ़ते हो, तो वो स्कीम में कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे पहले रिकवर करेंगी। अगर ये मैं कोविड-19 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ से कौन सी कंपनियां हैं जो जब से फास्ट रिकवरी करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमेबल गुड्स, जो कंज्यूमर के रूटीन के जो गुड्स है, वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कंपनियां ज्यादा जल्दी रिकवर करेंगी। FMCG एफएमसीजी मार्केट है, जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो हैं, वो ज्यादा रिकवर करेंगे। जो लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हाई एंड क्लोथ्स हो गए या कार्स हो गए, ऑटो तो ऑटो है, तो उसमें थोड़ा रिकवरी आने को वक्त लगेगा। तो मैंने कहा कि आप इवेंट के ऊपर ध्यान ना रखिए, इवेंट की इफेक्ट मार्केट पे क्या आने वाली है। अगर आप आने वाले समय को आज देख सकते हो, इफ यू कैन सी फ्यूचर इन द प्रेजेंट, देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द मार्केट। तो मेरे हिसाब से योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू द हाई रेटिंग, नॉट द स्कीम। एंड ऐसी कोई भी फाइनेंशियल
ऐसी कोई भी क्राइसिस आते हैं, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल और मेडिकल क्राइसिस, तो ऑफ कोर्स आपको फायदा लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा एक साथ में लगाना नहीं चाहिए। आपके लिक्विडिटी को, आपके सर्वाइवल फंड को या इमरजेंसी को देखते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे लगाओ। सेम जैसे आपके रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर जैसे रेटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने पिछले 3 साल से SIP की है और 3 लाख रुपए डाला है, बट वो 3 लाख आज 2.5 लाख हो गया है, तो मुझे वो SIP कंटिन्यू करनी चाहिए, या मतलब एक गोल को अगर मानते हुए मैंने 10 साल की SIP या 7 साल की SIP की है और वो 3 साल बाद भी नेगेटिव है पैसा, सो और पैसा उसमें डालना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स ये कोई भी प्रकार का जो क्राइसिस है ना, तो वो रिकवर तो होने वाला है। ये कोविड वाज अ वेरी अनप्रेजेंट प्रेडिक्टेबल सिचुएशन, लेकिन ऐसे छोटे मोटे क्राइसिस हमारे पास्ट में बहुत आए हैं। 2008 वाला जो क्राइसिस था, 2014 वाला क्राइसिस था, तो ऐसे क्राइसिस से हम बाहर निकल के आए हैं। लेकिन जब आप 3 साल से रेगुलर SIP कर रहे हैं और आज भी नेगेटिव है, तो एक तो अच्छी बात है कि आपको कम NAV में आपको कम प्राइस में NAV मिल रहा है। और अगर स्कीम आपके गोल्स के हिसाब से अगर सही से सिलेक्ट किए तो कोई डरने की बात नहीं है। आपका गोल नजदीक आ रहा है और आपका स्मॉल कैप और या मिड कैप या कोई सेक्टोरियल फंड है, तो उसके बारे में आपको सोचने की बहुत जरूरत है। अगर आपका लार्ज कैप और मिड कैप या हाइब्रिड इस प्रकार का अगर आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम है, और अगर आपका गोल नजदीक है, तो यानी 5 साल में है, तो डरने की बात नहीं है। अगर मैं लंबे समय का अगर गोल है, तो मुझे मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे फंड हाउस है, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो अगर 3 साल से भी अगर नेगेटिव में है, अगर आपका फंड अच्छा है, गोल दूर है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मौका है तो SIP बढ़ाओ या SIP को कंटिन्यू कीजिए। SIP में एक और बात बोलूंगा मैं मल्टी एवरेजिंग में मानता हूँ। अगर SIP ऑटोमेटिक एवरेज करता है, SIP इज a really good tool to create a wealth, लेकिन मैं मेरे क्लाइंट का कैसे करता हूँ कि अगर उनका 20,000 का SIP है या 10,000 का SIP करना चाहते हैं, तो सेम मंथ में मैं 4 बार पार्टिसिपेट करूंगा। यानी एक साथ में 10,000 नहीं डाल के 2,500 की 4 SIP इन द सेम स्कीम इन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, तो इसको मल्टी एवरेजिंग करूंगा मैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उनका बैलेंसिंग और ज्यादा हो जाता है। यानी 5 तारीख को जो NAV था उसमें भी उसको बेनिफिट मिलेगा, 10 तारीख को भी मिलेगा, 15 को भी मिलेगा, 20 को भी मिलेगा। तो मैं जो ऑटो एवरेज का एक इनबिल्ट फंडा है SIP में, उसको मैं और ज्यादा ऑटो एवरेज करता हूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रियली गुड टूल कि आपको करना चाहिए। अगर आप 5,000 की SIP करते हैं, तो आप 2,500 के 2 इंस्टॉलमेंट इन सेम SIP अलग अलग डेट में भी प्लान कर सकते हो। तो अगर वो मंथ में अगर ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है मार्केट, तो आपको दोनों दिन का ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आई जनरली एडवाइज इन दैट फॉर्मेट आल्सो। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर क्वेश्चन। अच्छे सवाल थे। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सो आई थिंक हमारा टाइम 5:40 हुआ है और हमें थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव क्वेश्चन, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, एंड वो क्वेश्चन है आपके एक्सपीरियंस को लेके। आप सब अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि इनमें से ये जो मैंने 2-3 सिचुएशन रखी है, आप में से कितने लोग हैं जो आप ऐसे सिचुएशन से पास हुए हो पास्ट में। इन्वेस्ट करने का सही मौका था, बट तभी मेरे पास फंड नहीं था। ये एक सिचुएशन है कि यार सही मौका था, जैसे अभी कोविड-19 का जो डिप आया, 2008 में डिप आया, ऐसा जब जब भी कुछ डिप आया है मार्केट में, तब मेरे पास मौका था, लेकिन पैसा नहीं था। हो सकता है रियल एस्टेट के बारे में भी बहुत लोगों का ऐसा मानना है, होता है। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ये अग्री करेंगे, ये सिचुएशन आपने फेस किया होगा। दूसरा सिचुएशन है, फंड था तब कोई सही मौका ही नहीं मिला। ऐसा भी एक सिचुएशन होता है, क्या साला मेरे पास फंड आया था, मेरे पास बोनस आया था, और अचानक मेरे क्लाइंट ने मेरे को बहुत सारा जो पेंडिंग बिल था वो क्लियर किया, लेकिन तब मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। डू यू अग्री? ऐसा कभी पास्ट में हुआ है? हाँ, हुआ है। हाँ,
आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ दोनों में हुआ है, दोनों में। Both are true. यस यस यस, आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के साथ ये अक्सर होता है। और तीसरा जो है ना, फंड था, मौका भी था, पर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी समझ नहीं थी। ऐसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को या हमारे आसपास दोस्त या फैमिली मेंबर्स को बहुत बार देखे होंगे कि मेरे पास फंड भी था, मौका भी था, बट कहाँ प्लान करना चाहिए मुझे पता नहीं था। और कई बार ऐसी सिचुएशन हमें तब पता चलती है जब लेट हो गया होता है, जब हम रिव्यू करते हैं, जब बहुत सारी पॉलिसीज का जब एनालिसिस करते हैं, तब प्लान पता चलता है कि यार तभी फंड भी था, मौका भी था, इन्वेस्ट किया, लेकिन यार गलत जगह पे कर लिया, सही पता नहीं था, सही नॉलेज नहीं था इन्वेस्ट करने का। तो ये सारी सिचुएशन में हमें अफसोस ना हो, उसके लिए हमें प्लानिंग करते रहना चाहिए। एक सवाल किसी ने पूछा था कि व्हाट आर द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, तो दीज आर द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। तो प्रोटेक्शन के एरिया में हम सभी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल अदर इंश्योरेंसेज हम एडवाइस करते हैं। सेफ्टी के क्वाड्रेंट में फिक्स रिटर्न के इन्वेस्टमेंट है, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडीज। एक्सक्यूज में किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज। चाचा के चिराग भाई, चिराग शाह, आपका माइक ऑन रह गया है। ओके। उसके बाद ग्रोथ क्वाड्रेंट में हम इक्विटी प्लान करते हैं, लोगों को इक्विटी एडवाइस करते हैं। इक्विटी एसआईपी भी एक बहुत अच्छा फंडा है। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है, वैसे इक्विटी एसआईपी भी दो तरीके से हो सकती है। आइदर यू कैन फिक्स द अमाउंट, जो डायरेक्टली आप वो अमाउंट आप स्टॉक खरीद सकते हैं। वी हैव अ बंच ऑफ 60 वेल इवेल्यूएटेड स्टॉक्स, जिसको हम रेगुलरली इवेल्यूएट करते हैं। 15 अलग अलग सेक्टर को हम इवेल्युएट करते हैं, और उसमें से कुछ शेयर्स आपके नीड के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको उसमें हम रेगुलर एसआईपी का एडवाइस करते हैं। दिस इज द वन वे। दूसरा, कुछ लोग ऐसे प्रीफर करते हैं कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स वो फिक्स कर दीजिए, अमाउंट चाहे कुछ भी रहेगा, अमाउंट 15,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में हमें फिक्स करना है। इक्विटी रेंटिंग एक ऐसा अनपॉपुलर यानी लेस पॉपुलर एरिया है। आपके शेयर्स को आप भाड़े पे लगा के उसमें रेंटिंग कमा सकते हो, और ये पूरा प्रोसेस मॉनिटर होता है नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज की एक संस्था के द्वारा। एंड दिस इज एक्सट्रीमली सेफ, रेगुलेटेड एंड लीगल एरिया, कि आपके अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो वो भी आप प्लान कर सकते हो हमारे थ्रू। दिस इज द सर्विस वी प्रोवाइड। म्यूचुअल फंड, सबको पता है म्यूचुअल फंड में कैसे किया जाता है प्लानिंग। तो ग्रोथ के एरिया में इतने एरियाज है हमारे। अपॉर्चुनिटी में हम डेरिवेटिव्स, कुछ लोग जो रेगुलरली अगर इक्विटी में प्लान करते हैं तो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में हम लोगों को एडवाइस करके पैसिव इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके पैसे को काम पे लगाओ। हमारी एक अर्निंग एज है, हम कितने साल तक काम कर पाएंगे, और हम जो कमाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। लेकिन अगर हम वो एक्टिव इनकम का कुछ पोर्शन अगर हम ऐसे तरीके से लगाएंगे जिसपे से हमें पैसिव इनकम आती रहे, अगर अभी मुझे जरूरत नहीं है तो इस तरीके से मैं प्लान करूं और एक कॉर्पस जमा करूं, उसके बाद में उसको पैसिव इनकम में डेरिवेटिव या बहुत सारे और भी एरियाज है जहां पर पैसिव इनकम में प्लान करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक कैलकुलेशन ये है कि जब मेरा पैसिव इनकम व्हेन इट बिकम्स हायर देन माय एक्टिव एक्सपेंसेस, that is the area of financial freedom. I will enter into the financial freedom when my active expenses are lesser than my passive income. तो वो एक एरिया है। क्रेडिट मैनेजमेंट, यानी आपके पास फंड नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी पता है पैसा कमाने की, तो कौन कौन से ऐसे एरिया जहाँ से आप फंड प्लान कर सकते हो। आप लोन, उसमें खास करके हम लोन को लेके हम प्लान करते हैं, चाहे गोल्ड लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, या म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको लोन मिलती है। आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर भी आपको लोन मिलती है, एंड यू इन्वेस्ट इन अदर अपॉर्चुनिटी। अनलिस्टेड शेयर्स, जो शेयर्स अभी मार्केट में लिस्ट हुए नहीं है, वैसे शेयर्स में भी अगर आप किसी को इन्वेस्ट करना है तो वी डू एडवाइज। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, थाईलैंड में हम लोग एडवाइस करते हैं। थाईलैंड में
वाई इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, एक तो वहाँ का रेंटल यील्ड जो है वो यहाँ से ज़्यादा है इंडियन मार्केट से। प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन का जो यील्ड है वो इंडियन मार्केट से ज़्यादा है। और जो तीसरा बेनिफिट है जो इंडियन मार्केट के अलावा हमें मिल सकता है, दैट इज करेंसी अप्रिशिएशन। तो वो करेंसी अप्रिशिएशन इज नॉट देयर इन इंडिया। तो वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में हम लोगों को एडवाइस देते हैं, खास करके थाईलैंड में। फ्यूचर में और भी कंबोडिया जैसे कुछ देश में कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी हमारे पास। अदर एरियाज, लोन एडवाइजरी सर्विसेज एंड टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, ये हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें हम ये सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लोन को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है, सिमिलर विद द टैक्स प्लानिंग। मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया हुआ है। आई विल बी ग्रेट टू शेयर रेगुलर इंफॉर्मेशन टू यू। तो आप आपका व्हाट्सएप नंबर अगर मुझे ये नंबर पे अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आफ्टर दिस सेमिनार आई विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन। और ये पीपीटी भी अगर आपको चाहिए तो आई विल शेयर विथ यू। एंड आई डू शेयर important information related to finance and all those areas to those people who जिनको ये रेगुलर मैसेजेस चाहिए। तो उनको ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इनको मैं रेगुलर मैसेजेस देता हूँ। थैंक यू सो सर मच। एक क्वेश्चन था। प्लीज गो अहेड। सर ये इक्विटी रेंटिंग जो बोला, जी इक्विटी रेंटिंग जी ग्रोथ में, तो उसमें जो आपने बोला है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास 400 रिलायंस के शेयर है, ओके तो उसको रेंटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं? ओके, ये उसमें क्या कैसे? अपने को बेनिफिट कैसे मिलता है अपने को? ओके तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये पूरा कैसे चलता है। जो इक्विटी रेंटिंग है ना, उसका एक्चुअल नाम है सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। आप गूगल पे डालिए, आप एनएससी की वेबसाइट पे डालिए, आपको सिक्योरिटी और लेंडिंग का वो पेज आ जाएगा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम कैसे करता है? आप आपके जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो आप उसको हमारे डीमेट अकाउंट में शिफ्ट कीजिए। जो आप डीमेट अकाउंट हमारे थ्रू एक नया डीमेट अकाउंट खोलेंगे और हमारा जो कोलैबोरेशन है वो उस कंपनी के साथ है जो इक्विटी रेंटिंग में यानी सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग में भारत में नंबर 1 है, जिसका सबसे ज्यादा बिजनेस एसएलबी में सबसे ज्यादा बिजनेस उस कंपनी का है। उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। तो एक तरीका ये है, आप हमारे से एक नया डीमेट खोलिए और आपके जितने भी शेयर हैं हमारे डीमेट में आप शिफ्ट कर दीजिए। आप ट्रेडिंग करें ना करें, लेकिन आप हमारे पास शिफ्ट कर दीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं। और ये अपॉर्चुनिटी एनएससी पे आता है। ये काम कैसे करता है, यानी जिसको भी रेंटिंग के लिए शेयर्स चाहिए तो वो एनएससी को अप्लाई करता है और एनएससी वो सारे ब्रोकर जो एसएलबी में काम करते हैं उनको नोटिफिकेशन देता है। और वो ब्रोकर आपको नोटिफिकेशन देता है जब उसको पता चलता है कि रिलायंस के शेयर्स में अपॉर्चुनिटी है और आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं और आपका अकाउंट मेरे पास है। तो मुझे पता चलेगा कि आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो मेरी तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपको बोलूंगा कि सर देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर 25 डेज और उसमें 17.5 रुपए का पर शेयर आपको रेंट मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 25 डेज। क्या आपको लेना है? अगर आप हाँ बोलेंगे तो आपके टेलीफोनिक, जैसे हम लोग शेयर्स लेते हैं तो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग होता है, तो वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपके शेयर्स को वहाँ रेंटिंग में रख दिया जाएगा और पूरे 25 दिनों का रेंट आपको एडवांस में मिल जाएगा। ट्रांजेक्शन प्लस 1 और 2 डे डिपेंडिंग ऑन द छुट्टियों के दिन है या रेगुलर डेज है, तो वेरी नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में जितना भी रेंट है, अगर ये एग्जांपल में मान लो 17 रुपए का या 20 रुपए का रेंट है और आपने 50 शेयर पर शेयर अगर 20 रुपए का अगर रेंट है पर डे और पर ट्रांजैक्शन पर डे। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर 50 शेयर्स आपने रेंट पे रखे हैं और 20 दिनों के लिए और एक शेयर्स का रेंट 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज इंटू 50 नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ डेज, तो उसका जो भी एक्यूमुलेशन अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी आपने शेयर्स बेचे नहीं है,
आपने शेयर्स की अथॉरिटी किसी को नहीं दी है और आपको रेंट मिल गया एडवांस में, और इस 20-25 दिनों के दौरान अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, स्प्लिट डिक्लेयर करती है या डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यू विल गेट दैट बेनिफिट। वो बंदे को नहीं मिलेगा जो आपके शेयर्स रेंट पे लेता है। जैसे उसके टेन्योर खत्म हो गई 20 दिन का या 25 दिन का, वट एवर इज द टेन्योर ऑफ दैट रेंटिंग अपॉर्चुनिटी, तो ऑटोमेटिकली दो शेयर्स विल कम बैक इन योर डीमेट अकाउंट। सो दिस इज कंप्लीटली पैसिव इनकम प्रोडक्ट। तो इसमें आपको वैसे शेयर्स रखने चाहिए जो आप नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए बेचने वाले नहीं हो। तो पता नहीं है कि कौन से और ये शेयर्स टोटल की सिक्योर रहते अपॉर्चुनिटी। सर? हाँ जी, टोटल सिक्योर रहते हैं ना ये सब जो लेके गया रेंटल से? हाँ हाँ हाँ, तो ये टोटल सिक्योर रहते हैं ना? अपना पोर्टफोलियो समझो ट्रांसफर किया है हाँ हाँ आपके डीमेट अकाउंट में, तो वो टोटल शेयर अपने सिक्योर रहते हैं ना? आपके आपके सिक्योर रहते हैं ना, वो क्वेश्चन है। 100% सिक्योर रहते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल yes, दूंगा okay, कि मान लो आपका रेसिडेंशियल घर है एक, जो मैंने रेंट पे लिया है, हाँ हाँ तो उसको मैं बेच नहीं सकता, मैं आगे किसी को रेंट पे नहीं दे सकता। अगर सोसाइटी का कुछ भी कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन आपके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। मुझे सिर्फ आपको रेंट देना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। राइट। तो मेरे पास ओके सर, सेलिंग के थैंक राइट्स यू नहीं, वेरी मच। इट इज हाईली सिक्योर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, so here which company you have typed for डीमेट? ओके, डीमेट के लिए एक सवाल आया है, किसी ने टाइप करके भेजा है, तो विच कंपनी। मेरे पास प्रूडेंट ब्रोकिंग फर्म है रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, और एक ये शेरखान है स्पेसिफिकली फॉर इक्विटी एसआईपी के लिए, अनुग्रह है डेरिवेटिव के लिए। तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डीमेट पार्टनर रखे हैं। सो हम लोग बायस ना हो जाए इसके लिए, यानी हमारा जो भी एडवाइस है वो बायस्ड एडवाइस नहीं होना चाहिए, लोगों के पोर्टफोलियो सेंट्रिक एडवाइस होना चाहिए। क्लाइंट का पोर्टफोलियो हमारे सेंटर में रहना चाहिए। जब हम कुछ भी एडवाइस करते हैं तो हम एक डीमेट पार्टनर के साथ डील नहीं करते, हम मल्टीपल पार्टनर के साथ डील करते हैं। तो हमारा जो पूरा नजरिया है वो बायस ना हो जाए इसके लिए। सो दैट इज द आवर स्ट्रेटेजी कि हम एक डीमेट पार्टनर के साथ काम नहीं करते, ज्यादा डीमेट ब्रोकर के साथ काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। So I hope you all have enjoyed the and is there any other question? I'm just looking at my mobile कि अगर किसी और ने कोई सवाल पूछा है क्या? I don't think any other question. So shall we wrap up? Any other question, sir? Thank you, sir. ये मेरा ईमेल आईडी है। sir. मैं आपका पोर्टफोलियो कोई भी एडिशनल चार्जेस ले बिना एनालिसिस करके दे सकता हूँ, आपको कंसल्टेंसी दे सकता हूँ विदाउट एनी चार्जेस। तो ये मेरे नंबर है, आप नंबर पे मुझे आपका नंबर व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ। एंड आई हैव अ फीडबैक फॉर्म, अगर बिकॉज ऑफ दिस वेबिनार सेमिनार में हमें आपके मोबाइल नंबर मिलते नहीं है, तो मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म देना चाहूँगा जिससे मैं इम्प्रूव हो सकूँ मेरे काम में, और मैं आपकी कुछ चीज़ें पता कर सकूँ, तो मैं आपको उस एंगल में, उस डायरेक्शन में एडवाइस दे सकूँ। आई वुड like to share that feedback form, but I don't have your WhatsApp number. If you can, you just share your name and number to my WhatsApp number, which is there in the screen. So I will share that feedback form. It will help me to understand your portfolio in a little bit and to grow me. I believe let's grow together. Let's go together. Let's grow together. And I really wish to thank all the organizers of JBO and all the body, mind and soul of JBO who provided this platform to share my knowledge. And I'm extremely sorry for the beginning कि जो इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसका फायदा नहीं ले पाए, but if you all are interested we can take one more session, maybe whenever when JBO will permit us to we can take,
और if you interested in specific area like equity तो हम इक्विटी में अलग से एक सेशन ले सकते हैं, बच्चों के या फीमेल के भी अलग हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हम सेशंस ले सकते हैं. So you can put me, you can keep my ID and number on your list. So we can. So we will share your contact details for the group. And I am there on JBO also. You can find me. And thank you so much, Kaushik Bhai and all the team who supported me. Thank you very much, sir. And all the participants जिन्होंने थोड़ा patience रखा beside the network issue. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you.